आपकी only screen sharing पर है recording. Now recording is started. ठीक है, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. अब आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है? जी वालेकुम सलाम. जी. मैं ये कह रही थी कि ये वेबिनार कंडक्ट करने की वजह कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे डायरेक्ट कुछ सिस्टर्स ने पीएम किए थे और कुछ ट्रस्ट के ही बारे में थे. तो मुझे महसूस हुआ कि बेहतर है कि मैं एक वेबिनार कर लूँ जिसमें हम सब मिलके ही इस चीज़ को डिस्कस कर लें और आप लोग भी अपने पॉइंट्स ऐड करें, एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं हम लोग अपनी बातों से, और इस वजह से ये वेबिनार आज कंडक्ट हो रहा है. सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मुमकिन. I hope all of you are doing well. So let's we start today's our webinar. For those of you who don't know who I am, let me introduce myself. My name is Nikhat Fatima and I am a life coach. I work with sisters who wants to improve their relationship and have happy relations. तो आज के इस वेबिनार को कंडक्ट करने की वजह ये है, कुछ सिस्टर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एनोनिमसली. हैं ये, व्हाट डू आई डू इफ आई डोंट ट्रस्ट ऑन माय हस्बैंड एंड हाउ टू टॉक टू माय हस्बैंड ऑन दिस टॉपिक व्हेन यू फाउंड दैट ही इज नॉट फेथफुल विद यू. सो इसी वजह से वी गैदर हियर, हाउ टू rebuild the relationship once the trust is broken. As we know that trust is integral for every happy relationship, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो, चाहे वो आपकी कोवर्कर्स के साथ हो, या चाहे वो आपके between spouses. And this is trust that allows to navigate the uncertain and complex world we live in today. According to a survey, the top 4 reasons of relationship breakdowns, and one of the reason is lack of trust. Now we focus with the reference of lack of trust to on the relation, which is the unit of society, we can see. And yes, this is the relation which Allah created us in that relation. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, and we created you in pair. अच्छा, अब आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम was alone in Jannah, and that time Allah did not give him a brother, a friend, or any other companion or any other thing that which he can accompany with it, right? He gave him a wife, and this itself is enough to show the importance of a spouse in our life. But is only enough love in the relationship? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. So let's we move. In current time, with the rise of internet, mobile phones, emails, social media, it is so much easier for people to connect with others. So with the background of all this, I would like you to share what is your concept of trust. You can unmute your mic to speak, and also you can write in chat box. Assalamualaikum. Walaikum. I'm Zainab. I think when I think about trust, I feel it is when the word is altered from his mouth
or whatever is he saying, I am not having any another thought on his sayings or his situations or things like that. That is trust for me. The time I have a doubt in my mind, it's mean I'm not able to trust him. Okay. Any other, please? I would say feeling safe around that person to say, or even physically feeling safe. Yes. और मिस और कोई आप लोग में से बता सकेगा? You can unmute your mic to speak and also you can chat, please. कि भरोसा या ट्रस्ट कि आपके नजदीक किसी भी रिलेशंस में, ठीक है, या स्पाउसेस में सेटल हैं, जो आप फोकस करना चाहें, उस लिहाज से आप मुझे बताइए. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. I think trust is something कि आप किसी के लिए भी, स्पेशली अगर आप स्पाउस में देखें, तो ऐसा है कि आप कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हो, आपका हस्बैंड आपको एटलीस्ट इफ्स एंड बट्स, कहाँ, क्यों, कैसे की वो फीलिंग ना हो कि आपको पूछना पड़े, ना हस्बैंड को वाइफ से, ना वाइफ को हस्बैंड से. दैट इज समथिंग, अ फीलिंग जो आपकी इनर उसमें आती है कि आप किसी को इतनी स्पेस भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि वो कहीं भी रहे, कितना दूर भी हो, कुछ भी कर रहा हो, आपको एक इनसिक्योरिटी या कोई एक ऐसी फीलिंग ना आए आपके दिमाग में कि जो आपको डिस्टर्ब करे. और चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, आप सेटिस्फाइड रहें, आप रिलैक्स्ड रहें. तो मतलब आई थिंक ट्रस्ट इज समथिंग लाइक दैट, जो आप जी बिल्कुल, मतलब फ्री ऑफ इनसिक्योरिटीज, ऐसी फीलिंग जी बिल्कुल, जिसमें इस लेवल की सिंसेरिटी हो, और मतलब प्यार भी हो, ऑब्वियसली सब कुछ, कि आपको एक ये इतनी सेटिस्फेक्शन हो कि वो कुछ भी किसी के बारे में पता चल रहा है, या कुछ भी आपको तो नहीं जी, ये ऐसा नहीं हो सकता या कर ही नहीं सकता. सही. So, इतना आपको level of यकीन है, आपका यकीन इतना, माशाल्लाह. ठीक. इतना होना चाहिए. जी बिल्कुल. लेकिन अगर वो टूट जाए, तो उसके लिए फिर आज हेल्प आउट चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है. इसके बारे में इंशाल्लाह अभी हम बात करेंगे. जी अच्छा, हाँ जी. नाइदा आप बोल सकते हैं, अनम्यूट है माइक, मेरे ख्याल से मैंने म्यूट नहीं किए हुए हैं. प्लीज गो अहेड. जी, two things that मैं कहूँगी कि trust, even his capabilities, I would say कि he is a good husband and he's capable of doing things for you and your children as a father as well. And trust even कि वो जो कह रहे हैं कि I am trusting his niyat also, like, you know, feeling safe for what he says or what he does. So I think trust in that way as well. अच्छा, तो अब हमारे पास ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक क्लियर हो गया कि जो हम चाहते हैं, ठीक है ना, और जैसा कि होना चाहिए. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट. अब मैं ये चाहूंगी कि आप देखें कि हाउ वुड यू रेट योर म्यूचुअल ट्रस्ट in your married life. You can share or you can write only for yourself, या यूं समझ लें कि आपके ख्याल से कोई पिक्चर माइंड में जैसे इमेजिन करके जो पॉइंट्स आप लोग कह रहे हैं कि 1 to 10 की स्केल पर म्यूचुअल ट्रस्ट का रेट क्या होना चाहिए. टेन. नायदा ने लिखा है 10. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा मुझे उनको एडमिट करते जाना पड़ रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. जी
आप ओके, इट्स अप टू यू कि एक मेरी पार्टिसिपेंट ने तो लिख दिया कि 10 होना चाहिए। और आप में से कोई कुछ बोलना चाहे? अच्छा, अगर 10 होना चाहिए तो उसके ऊपर वो सारे पॉइंट्स जो अभी आप लोगों ने बताए वो सारे उसके ऊपर आते हैं। एम आई राइट? जो आप ही लोगों ने अभी मुझे बताए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ तक हम समझ गए हैं बात को, तो अब हमारे पास ये है कि ट्रस्ट के मायने भी हैं और ट्रस्ट को हमने उसे मेजर भी कर लिया। तो लेट अस मूव फ्रॉम ट्रस्ट टू डिस्ट्रस्ट। कि ट्रस्ट तो हमें पता चल गया, तो फिर अब डिस्ट्रस्ट क्या है? जब हम डिस्ट्रस्ट की बात करते हैं तो वो बेसिकली ऐसा है कि वो दो टाइप का है, यानी कि मिसट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट, यानी ब्रोकन ट्रस्ट भी दो टाइप का है। उसमें एक तो ये है कि मिसट्रस्ट इज बेस्ड ऑन फीलिंग ऑफ अनईज, यानी कि हम यहाँ पे एक शेयर करती हूँ मैं आपसे स्टोरी, और वो ये थी कि मुमकिन के तवज्जो से एक साहब हमारे पास आए थे मुमकिन के प्लेटफॉर्म से उनकी कोचिंग के लिए। उनको कुछ ऐसा ख्याल था कि उनकी वाइफ उनसे कुछ फेथफुल कंप्लीटली नहीं है। वो एक्चुअली मसला ये था कि उनकी वाइफ की पहले किसी और जगह मंगनी हुई थी, फिर वो मंगनी खत्म हो गई या वहाँ शादी नहीं हो सकी और फिर इनसे शादी हुई। अच्छा, अब जब हमने उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि आप वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। बहरहाल कुछ कोचिंग के सेशंस हुए, कुछ बातचीत के बाद उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ऐसी बात नहीं है, उनकी वाइफ मुकम्मल उनसे वफादार है और वो सिर्फ उनका अपना कुछ अनईजी फीलिंग थी, यानी उनके पास कोई प्रूफ नहीं था इस चीज़ का। तो इस तरीके से जब आप किसी को ब्रोकन ट्रस्ट के लिए ब्लेम कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आपकी अपनी जजमेंट होती है, आपकी अपनी कोई फीलिंग होती है, कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई शक। ठीक है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये ब्रोकन ट्रस्ट, इसको हम कहेंगे कि डाउट है आपको, सिर्फ इसको कोई एविडेंस नहीं है। तो जो नेक्स्ट है ब्रोकन ट्रस्ट, उसमें ये है कि इन्फॉर्म जजमेंट, यानी आपका किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा या कोई एविडेंस, रिलायबल इंफॉर्मेशन है जिससे कि आप समझ रहे हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाँ ये आपको ब्रोकन ट्रस्ट है, यानी आपके साथ कोई वफादारी नहीं हो रही या कुछ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट डज ट्रस्ट लुक लाइक इन अ हेल्दी मैरिज। जैसे कि आप लोगों ने कहा, तो उसके प्रैक्टिकल यानी और हेल्दी मैरिज में यानी लव एंड रिस्पेक्ट के साथ ट्रस्ट में किस तरह से होना चाहिए और कुछ, ये तो हम समझ गए कि हेल्दी मैरिज में ट्रस्ट है होना चाहिए, लेकिन किस तरह से होना चाहिए, हाउ इट डज लुक लाइक। कुछ सिस्टर्स ने तो पॉइंट्स मेंशन किए इन द बिगनिंग में, ऑलरेडी यू हैव पार्टिसिपेटेड, लेकिन कुछ पार्टिसिपेट थोड़ा लेट हुए हैं, जो पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा बाद में आए, तो उनको मैं चाहूंगी कि वो कुछ अपनी राय का इजहार करें। जी, you can unmute your mic to speak, please. आपके ख्याल से एक हेल्दी मैरिज में ट्रस्ट किस तरह से होना चाहिए? मैं इस वक्त उन पार्टिसिपेंट से मुखातिब हूँ जिन्होंने अभी तक अपनी राय का इजहार नहीं किया। ठीक है, अच्छा, चैट में हमारे पास एक जवाब आया है, यस, वुड मीन्स रिस्पेक्ट। किस तरह की रिस्पेक्ट मतलब?
अगर आप चाहते हैं कि रिस्पेक्ट है तो मतलब उसमें कैसे रिस्पेक्ट होना चाहिए? किन बातों में रिस्पेक्ट होना चाहिए? जी। यानी कितना भरोसा हो और किस तरह से वो अपनी इस बात का इज़हार करें कि हाँ अ, वो आपकी इज़्ज़त करते हैं, किन बातों में आपकी राय को अहमियत देते हैं हर जगह पे या आपको आपकी बात को दूसरों की बात पे ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं। ओके, ठीक है। ऐसा ट्रस्ट हो कि दोनों का पास जो है वो ये भी बिल्कुल बहुत सारी ठीक। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। आप लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसा ट्रस्ट हो कि एक-दूसरे की इज़्ज़त करें और ये हम समझ सकें कि लव और रिस्पेक्ट के अलावा ट्रस्ट होना बिटवीन स्पाउसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनसे ट्रस्ट बेहतर रहता है, क़याम बरकरार रहता है, जैसे कि आप लोगों ने शुरू में कुछ ख़यालात का इज़हार किया और बताया मुझे कुछ पॉइंट्स। इसमें कुछ पॉइंट्स जो ऐड हम करेंगे उसमें अ, सबसे पहला तो ये है कि एक टीम मेंटालिटी होना चाहिए। घर में, सोसाइटी में, बच्चों के सामने यानी कि लाइफ़ में हस्बैंड एंड वाइफ़ का किरदार बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो भी बात सामने है वहाँ पे मैं का वर्ड बेहतर है कि नहीं यूज़ किया जाए और दोनों स्पाउस दोनों पार्टनर जो हैं वो हम का वर्ड यूज़ करें। और एक-दूसरे से ज़ाहिर है वफ़ादार हों और एक-दूसरे को चेंज करने की कोशिश करने की बजाय एज़ इट इज़ कबूल करें। हाँ, एक-दूसरे की सेल्फ डेवलपमेंट में ज़रूर हेल्प की जा सकती है और उसमें अच्छे तरीके से हम इज़हार कर सकते हैं। इसी तरीके से ख़ास तौर से जब कोई मुश्किल वक़्त हो, तो यूजुअली ऐसा होता है कि स्पाउसेस एक-दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वफ़ा वफ़ादारी और भरोसे का तकाज़ा ये है, एक हेल्दी मैरिज का कि दे शुड टर्न टुवर्ड्स ईच अदर, नॉट ऑन ईच अदर कि एक-दूसरे को ब्लेम नहीं करें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि नो वन ट्राइज़ टू कंट्रोल देयर मैरिज कि स्पेस होनी चाहिए मैरिज में एक-दूसरे के लिए ताकि एक-दूसरे को किसी को भी ऐसा एहसास ना हो कि वो बहुत कब्ज़े में है। थोड़ा-सा पॉज़िटिव जो नेचर है उसको थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि थोड़ी स्पेस दें। आई होप कि हम इस मौज़ू पे मुकम्मल बात कर चुके हैं करे हैं कि आपको ये स्लाइड में जो मैं दिखाना चाहती हूँ अब हम इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि एक हेल्दी मैरिज में लव, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट किस तरीके से हम बरकरार रख सकते हैं। तो आप लोग कुछ इस सिलसिले में बताइए मुझे कि हम कहाँ जहाँ तक पहुँचे तो आप हम मज़ीद अगर कोई पॉइंट आप लोग ऐड करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ कि जी। ऑब्वियसली एफर्ट हो रही हो दोनों की तरफ से और नॉर्मल रिलेशन चल रहा हो, लेकिन किसी एक स्पाउस मतलब तरफ से कोई एक ऐसा एलिमेंट आए, नॉट कि वो मिसट्रस्ट ना हो, हुँ, डिसट्रस्ट ही हो कि उसमें हुँ, आपके पास हुँ, सबूत भी हो सब कुछ, लेकिन वो आपके सामने झूठ भी बोले, डिनाई भी करे हर चीज़ को कि सब कुछ,
ऐसा नहीं जैसा सोचा जा रहा है, मतलब यू आर रॉन्ग एंड सब कुछ ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ सामने आ जाती है, यस देयर वाज समथिंग एंड इट वाज ऑल धोखा। और तो ऑब्वियसली एक पार्टनर का ट्रस्ट शैटर होता है और सब कुछ, तो वो जिस फेज में चली जाती है, स्पेशली अगर फीमेल हो, तो आपने इतनी बनाकर ये रिश्ता एक लेवल तक पहुंचाया और एकदम सब शैटर हो जाए, उस स्टेट में या उसमें मतलब सिचुएशन में भी अगर फिर कहा जाए कि नहीं जी अब भी साथ दो, और इस सिचुएशन में भी, तो उस सिचुएशन में भी अगर वो साथ दे रही है, तो ऑब्वियसली आपके एक्सप्रेशन और वो, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूटा हुआ है, उस सिचुएशन में कैसे आपने उस रिलेशन को आगे लेके बढ़ना है, कुछ इसके बारे में भी अगर गाइडेंस हो जाएगी तो, क्योंकि आप सिंसियर हैं, लॉयल हैं, आप बीइंग वाइफ उस रिलेशन को चलाना चाहते हैं, लेकिन एक ये फैक्टर एक किसी की लाइफ में आ गया है, ऑब्वियसली इनफिडेलिटी कह लें या बिल्कुल। फिर सेकंड मैरिज कह लें, जस्ट के जी बस शौक के तौर पे कर ली गई, तो उस चीज़ को किस तरह आपने लेकर चलना है कि विद टाइम देखो सब सेट हो जाएगा, नई बनी चीज़ें, तो ये मतलब वट एवर द रीज़न कि अब साथ दो बच्चे हैं तो ये है, तो यू हैव टू बी हेयर, अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करो, यही बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन किस तरह उस चीज़ को बढ़ाया जाए या आगे लेके चला जाए, क्योंकि धोखा भी आपके साथ हुआ, टॉर्चर भी आप हो रहे हैं, अब लेकर भी आपने चलना है, तो दिस इज समथिंग रियली डिफिकल्ट किसी के लिए भी। जी तो बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में मैं थोड़ी गाइडेंस चाहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए सिस्टर, बात ये है कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में इस रिश्ते में जब ब्रोकन ट्रस्ट का मामला हो जाए, तो सबसे पहले तो खुद को काम रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन या रिस्पॉन्स से रिएक्शन से रिएक्ट नहीं, मतलब ये कि अगर जब आप इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करते हैं तो वो तो रिएक्ट हो गया, ठीक है। अब ये बात तो हो गई कि आपके पास है कि ये मिसट्रस्ट नहीं है बल्कि ये डिस्ट्रस्ट वाला मामला है, आपके पास एविडेंस भी है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाउ टू रेनोवेट अ हाउस। जो घर को रेनोवेट करना है वो बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रिश्ते को आपको रिबिल्ड करना है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों पार्टनर को खुलूस से, नियत से इस बात पर एग्री करना है कि उन्हें इस रिश्ते पर काम करना जरूरी है। अब मामला कहाँ तक सीरियस है और क्या है, तो बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप हम मुझे डायरेक्ट पीएम कर सकते हैं और मैं आपसे डिटेल में वी विल हैव अ डीपर डिस्कशन ऑन इट, क्योंकि हर बात खुल के अच्छी तरीके से उस वक्त बात हो सकती है जो 101 सेशन हो, ठीक है, फ्री 101 सेशन होता है, ये मैं आपको एंड में इसके बताती हूँ। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट ये कि इस रिश्ते को चलाना है, दोनों पार्टनर इस बात पे एग्री हों, तो इस रिश्ते पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप वक्त निकालें, कोशिश ये करें कि उस वक्त बात करें जब आप लोग पुरसुकून हो, आपके जज्बात पुरसुकून हो। कोई ऐसा वक्त, अक्सर कभी ऐसा वक्त किसी के पास सुबह का होता है, किसी शाम का वक्त होता है, जब इंसान एक टाइम होता है जिसमें इंसान का मूड हल्का होता है, जब हम बैठ के बात कर सकते हैं, वक्त को स्केड्यूल करके बात की जाए। दूसरे ये कि अपने रोज़ो शब का तज़किया ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी की भाग-दौड़ में भागे जाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की, घर की, ये सब चल रहा होता है। लेकिन हमें थोड़ा-सा पॉज़ लेके भागने से रुकना है और अपने रोज़ो शब का तज़किया करना है, ताकि ये पता चल सके हमें कि कहाँ पर कमी है या क्या चीज़ हमें ऐड करना है, क्या गलती है, किसी की भी, किसी एक को हम नहीं ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे इस वक़्त ब्रीफली बता रही हूँ। जिससे भी हुआ है, उसे ओपनली अपोलोजाइज़ करना है। एक्सपीरियंस के ऊपर अपने देखिए, न्यू मेमोरीज़ को ज़रूर क्रिएट कीजिए। जो हो गया है, जो उन्होंने कर दिया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। यू नीड टू फोकस फॉरवर्ड और उसके लिए न्यू मेमोरीज़ को आप, of course this is difficult, but to move your car in your life we need to move forward। कुछ जहाँ पे हम मिस्टेक्स या जो भी गलतियां हैं उनको हम गाहे बगाहे देख सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर हम उसी पे फोकस करेंगे तो आपको अंदाजा है कि घर को चलाने के लिए हमारी कितनी ज़रूरत है। मैं इस वक्त अपनी सिस्टर्स से मुखातिब हूँ,
हमें बहुत हौसले और सब्र से इस बात को, सिचुएशन को हैंडल करना है। एक बात और याद रखिए कि अगर किसी ने एक मर्तबा कुछ मिसट्रस्ट हुआ है या धोखा हुआ है या ब्रोकन ट्रस्ट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उन पे दोबारा भरोसा नहीं कर सकें। इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं और यकीनन कुछ गलतियां माफ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल अगर हमने ये फैसला किया है कि हमें रिश्ते को आगे निभाना है और हमें आगे बढ़ना है, तो फिर हमें उन गलतियों को इग्नोर करना पड़ता है, माफ करना पड़ता है, जिस तरह अल्लाह ताला हमारी बहुत सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना है। हम आमतौर से हमारी आदत है कि सिस्टर्स की कि हम दूसरों से बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन घर में हम नहीं करते। तो एक एक यहाँ पे मैं, एक कॉल है बानो कुदसिया का, मैं वहाँ ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि माँ की तरह खिलाएं, दोस्त की तरह गम बाँटें और बिल्कुल एक गर्लफ्रेंड की तरह उनको जो है लुभाएं। तो आप कोशिश करें कि हम अपने ऊपर भी अच्छा अपना टाइम, अपने वक्त निकालें। ऐसा नहीं हो कि हम अपने ऊपर वक्त ना लगाएं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से तो ये बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ वक्त अच्छी तरह से गुजारें, बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के, बगैर किसी उसके। और कभी कोशिश करें कि अगर आप सही भी हैं, वो गलत हैं, तो भी उनकी बात को सही मान लें। तो इसमें भी भलाई है और इंशाल्लाह ताला इसमें भी बेहतरी है। और जो गलत है, उसको तो उसका मामला आप अल्लाह ताला पर भी छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला। और आप यकीन करें कि जब कभी कोई ऐसा मामला है, तो उससे आपके ज़ात को यकीनन इमोशनली तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहरहाल ज़्यादा नुकसान उनका अपना होगा, जो जिस दौर में हम आजकल रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ये सिस्टर्स मतलब बहुत सारी बातें पूछते हैं, छोटी-छोटी बातें, मसले-मसाइल, तो वो सामने जो नज़र आ रहे हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आगे जाके देखें क्या होता है। तो सब्र बहुत बड़ी चीज़ है एक तो इस मामले में, और अपना बहुत ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि मैंने आपकी बात का कुछ हद तक जवाब दिया है। अपने रिलेशन को रीबिल्ड का मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि आप यूँ समझें कि आप न्यूली मैरिड हैं। बिल्कुल उस तरीके से दोबारा से रीबिल्ड करें अपने रिलेशन को। और एक एक और छोटी-सी एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों पार्टनर्स या जैसे आपको अगर कि जिसको भी है, तो वो एक पेपर पे आप बैठें और अपने जो भी नाराज़गियाँ हैं उनको लिखें और एक पॉट लीजिए और उस पॉट में उसको अंदर बरी कर दीजिए और एक दूसरे के साथ ये कहिए कि हमने बरी कर दिया है और अब हम इसको उस अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम इसे हमें खोदना पड़ेगा मिट्टी को और दोबारा निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स बरी इन अंडर द इन वेरी डेप्थ ऑफ द मड, समझ लिया। तो ये एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है और सुनने में शायद हाँ अंदाज़ा ना हो, लेकिन करने से बहुत अंदाज़ा होता है। जब करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, वाक़ई आप क्या कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहें अपनी तरफ से तो प्लीज़ ऐड योर पॉइंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। जी। आप में से कोई सिस्टर कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। आप अपनी कोई स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ब्रोकन ट्रस्ट का मामला है तो वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई और सिलसिला, बल्कि ब्रोकन ट्रस्ट ये भी है। मैं आपको एक और स्टोरी शेयर करती हूँ कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ बातें बताती थी और वो हस्बैंड जो है वो बातें अपने भाई को बता देते थे। जिस तरह होता है कि गपशप हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी तो ये कह रही है, तो हो सकता है उनके भाई भी उनको बता देते हों। तो बहरहाल फिर वो बातें वापस पहुँची उनकी वाइफ तक, तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ इस बात का कि घरेलू बातें थी, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट टूटा कि मैंने अपने हस्बैंड से शेयर की तो उन्होंने आगे से, तो इस तरह की भी बातें हो जाती हैं। इसको भी हम मतलब इसी में हम शामिल कर सकते हैं। जी।
आप में से कोई अगर कुछ शेयर करना चाहें तो आई रियली लव टू शेयर लिसन योर वॉइस प्लीज. And also you can chat in chat box. निदा मेरे साथ हैं यहाँ पे. जी निदा, अस्सलाम वालेकुम. जी बताइए कुछ आप सिलसिले में अपनी एक्सपर्टीज राय आप भी शामिल कीजिए प्लीज. हाँ, अभी जिन्होंने अपना मस्सा शेयर किया था, मस्सा था या आई कुड से कि वो शेयर करना चाह रही थी चीजें. जी द थिंग इज कि हम लोग यूजुअली अपने हार्ट्स पे काम नहीं करते ना, अपने आप को इतना टाइम नहीं देते. हम लोग यूजुअली मदर्स जो होती हैं खास तौर पे, वो सारा वक्त दूसरों की खिदमतों में बिजी होती हैं, और अपने आप को या अपने हवाले से अपने कहना चाहिए सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए या बिल्कुल अपने आप को मजबूत रखने के लिए इतना काम नहीं कर पाती हैं. होता क्या है कि बाय द टाइम वी गेट वीक, और जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन में हम फंसते हैं या हमारे सामने आती है जिसमें किसी भी तरह से हम हर्ट हो रहे होते हैं, वो सारे अंदर से जो कहना चाहिए ना बड़े हर्ट्स होते हैं वो निकल के सामने आ जाते हैं. यूजुअली इस तरह की चीजों में देखा गया है कि मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट का मामला एक तरफ, और बहुत सारी चीजें निकल के झगड़ों में शामिल हो जाती हैं. बिल्कुल. तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद अपनी जात के ऊपर काम करें और अपने हर्ट्स को हील कर लें, ताकि हमें इस तरह की सिचुएशंस डील करना आसान रहे. क्योंकि अब जो जमाना है उसमें शादी लेके चलना, ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए ना, एक वॉर है काइंड ऑफ वॉरियर थिंग. और मेरा ये ख्याल है कि लड़कियों को उसके लिए इमोशनली बहुत मजबूत होना चाहिए. बिल्कुल एग्जैक्टली So, इमोशनली जैसा बिल्कुल आप वही कह रही हैं जो कुछ देर पहले. माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच निदा कि इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है, अपने ऊपर काम करना जरूरी है. अच्छा, अब ये कि एक बात और कि अक्सर ये भी होता है कि मर्द हजरात पूछते हैं खवातीन से कि भाई तुम्हारी मेरा तो फलाना दोस्ती थी और फलाना यूँ था कि तुम्हारा भी कुछ था बताओ. तो उससे उस वक्त बेहतर यही है कि जो पास्ट है उसको दोहराने से या उसको बताने से कोई फायदा नहीं है. जरूरी नहीं है कि आप अपनी हर बात हर एक से शेयर करें. ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि हर बात हर एक को बताई जाए. ये एक सिंपल रूल भी है. तो अगर अनलेस के अगर कोई आपको बहुत खोजे या बहुत कुछ करे, तो वरना ये कि जरूरी नहीं है कि आप अपना पास्ट जो है अपने प्रेजेंट में मौजूद लोगों से शेयर करें, जबकि वो जरूरी भी नहीं है. उससे आपके प्रेजेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बेहतर यानी बेहतरी का किसी चीज का. तो बेहतर है कि उसे अवॉइड किया जाए. ये मेरी राय है और मैं समझती हूँ कि ये ज्यादा बेहतर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट्स वंडरफुल टू हैव यू हियर कि हम यहाँ पे आए और मैंने कुछ आप लोगों से बातें डिस्कस की. चाहती मैं ये थी कि आप लोग भी काफ़ी पॉइंट्स या बातें मुझसे करें. तो कुछ सिस्टर्स ने की हैं, कुछ सिस्टर सुनने में ज़्यादा बेहतर फील करते हैं, तो इट्स ओके. तो बट टेल मी प्लीज़ कि व्हाट वाज मोस्ट यूजफुल फॉर यू आज के वर्कशॉप में, आज जो हमने बात की जिसके ऊपर on the scale of 1 to 10, how well did this discussion meet our expectations? इससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ट्रस्ट के सिलसिले में और स्पाउसेस के बीच में जो रिलेशन है इसमें कुछ बाउंड्रीज भी होना बहुत ज़रूरी है. एवरीबडी नीड स्पेस. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम उन बाउंड्रीज को, जैसे कि अगर हमें मालूम है कि कुछ हो रहा है, तो जब सब सही चल रहा है, वो आपका ख्याल भी रख रहे हैं और सब कुछ है, तो हो सकता है कि वो एक एक फेस है, टाइम है और वो गुजर जाए. और वो अगर आपकी क्यूरियोसिटी की वजह से आपके इल्म में नहीं आता,
तो शायद आपको पता भी नहीं चलता और लाइफ स्मूथली इसी तरह आगे बढ़ रही होती। तो ये है कि वफादारी यकीनन दोनों को होना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम एक बाउंड्री सेट करें, जिस तरह हर रिलेशन में या हर काम में होती है। तो आई होप कि अब आप लोग मुझे बता सकेंगे कि कैसा रहा हमारा डिस्कशन। आप प्लीज़ अनम्यूट योर माइक टू स्पीक, और अगर मज़ीद कुछ डिस्कस करना है और व्हाट वाज यूज़फुल फॉर यू, कि कुछ बेहतरी हुई हमारी बात करने में। जी बिल्कुल। आयदा ने लिखा है कि रीबिल्ड रिलेशन को रेनोवेट अ हाउस वाज इम्पैक्ट। जी नादा आप बोल सकते हैं प्लीज, यू कैन अनम्यूट योर माइक टू स्पीक, मोस्ट वेलकम। जी सिस्टर निगत, मैं जैसे हमने पहले भी बात की कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करना या तस्किया करना ऑफ योर सेल्फ एंड लाइफ, तो उसमें एक चीज़ बहुत हेल्प करती है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि मैरिज इज़ नॉट द गोल ऑफ लाइफ, इट्स मीन्स, मतलब हमारा खुदा जो पर्पस ऑफ क्रिएशन तो बंदगी है, तो ये मैरिज शुड बी लाइक अ मीन्स टू बेटर बंदगी, ना कि हम लोग इसको गोल बना लेते हैं, यू नो। फिर ऑब्वियसली देन इट्स हर्टफुल एज वेल, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट अगर आप अपना बिगर पर्पस रखते हैं ना कि बंदगी है, देन एवरीथिंग अप्स एंड डाउन्स इन मैरिज दे हेल्प यू बिकम क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू ताला। यस सो अच्छा, मेरी कुछ सिस्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी मैरिज नहीं हो सकी और बड़े परेशान कर देते हैं लोग उनको। तो उनसे एग्जैक्टली मेरी यही बात हुई और मैंने उनसे यही कहा कि ज़िंदगी सिर्फ यही नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह अगर हो जाए, आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए, इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह ताला ही की तरफ से है। लेकिन इसको आप ये नहीं समझें, हमारा लॉन्ग टर्म विजन सही होना वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसी की वजह से भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और कोई आप लोग प्लीज़ अपना बताइए मुझे। जी मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि जी। जिस तरह से कि अभी जिस तरह प्रेजेंट में सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं, लेकिन आपकी कुछ पास्ट की ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपने अपने स्पाउस से शेयर नहीं की हुई, और आपको एक दिल में एक डर है कि मतलब कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक डर है कि कहीं से आपको उन आपके स्पाउस को कुछ ऐसा पता चले तो वो पता नहीं क्या समझें या कुछ इस तरह से, हालांकि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो, वो आपका पास था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। तो इस चीज़ को इस पे क्या करना चाहिए? उनके साथ शेयर कर लेना चाहिए, या मतलब कि आपके दिल में इस चीज़ का बहुत डर भी है, तो इस पे आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर अगर तो आपको ये बात है आपके दिल में और आप समझते हैं कि सिचुएशन ऐसी है कि उन तक ये बात पहुँच जाएगी, तो उन तक ये बात किस अंदाज़ से पहुँचेगी, उससे बेहतर ये है कि आप मुनासिब अंदाज़ में वो बात को बता सकते हैं। लेकिन उसी हद तक जिस हद तक आपको बताना ज़रूरी है, वो भी उस सूरत में जबकि आपको ये समझिए कि ये बात उन तक पहुँचेगी, क्योंकि जो बात किसी और से पता चले और किसी और तरीके से पता चले, उसके बजाय बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से मुनासिब अंदाज़ में बताएँ, लेकिन तफ़सील में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अव्वल तो पास्ट को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये भी सेट होना चाहिए बाउंड्री कि वी विल नॉट डिस्कस ईच अदर्स पास्ट, कि भई ठीक है जो बिकॉज़ पास्ट इज़ पास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस तरह के पास्ट को लेके ही पकड़ के बैठे रहे। साथ पढ़ते हैं, साथ काम करते हैं, बहुत कुछ कभी-कभी आगे-पीछे बातें हो जाती हैं अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इस तरह की बातों को कोई आजकल इतना माइंड नहीं करता। ये मेरी ओपिनियन है। ठीक है? लेकिन अगर आप समझती हैं कि उनको बताना चाहिए, उनके इल्म में ला देना चाहिए, तो आप समझ के अपनी सिचुएशन को आप स्टेप उठा सकती हैं और मज़ीद इस पे डिस्कस करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अच्छा, लुबना ने लिखा है माशाल्लाह गुड डिस्कशन, इट्स अ म्यूचुअल जेस्चर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि कुछ हमारा डिस्कशन इतना हुआ है जिसमें हमने जो, अगर मैं कंक्लूड करती हूँ तो उसमें सबसे पहले तो एक बात ये है कि हमको अपने ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। सेकंड, इस तरह की सूरत हाल में हमें बिल्कुल
रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा सब्र से रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि हम इस मौजू के हवाले से कुछ पॉइंट्स को अपने लिमिटेड टाइम में कवर कर सके हैं। फिर भी ज़िंदगी है, मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ सूरत हाल एक चैलेंज के तौर पर हमारे सामने आती है, जिसमें हमें एक मुखलिस शख्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें, यानी एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। और अक्सर ऐसी सूरत हाल में हम चाहते हैं कि घर वालों को या फैमिली वालों को इन्वॉल्व नहीं करें, तो ऐसे में एक प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके लिए मैं आपसे सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चनियर ये शेयर कर रही हूँ। ये आप फिल करके मेरे साथ फ्री 101 40 मिनट का सेशन अवेल कर सकते हैं। ये फॉर्म हमारी मुमकिन की वेबसाइट पर मौजूद है, आप इसे फिल करें। जहाँ कोच है का नाम है उसके आगे आप मेरा नाम लिख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात करूँगी। अच्छा, ये हमारे पास एक चैट और है, मैं देख लेती हूँ। जी, ये सेल्फ डिस्कवरी आप चैट में मेंशन है, शफ़क़ ने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं इस दुआ के साथ कि रब्बना हब लना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्न वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कि अल्लाह ताला हमारी बीवियों को और बच्चों को, हमारे पार्टनर्स को यानी हमारी आँखों की ठंडक बना, उन्हें हमारे लिए सुकून बना और उन्हें मुत्तकियों का इमाम बना। दुआओं में बड़ी ताकत है, दुआओं को ज़रूर पढ़ते रहें, करते रहें और खुद भी दीन की तरफ बहुत रुझान रखें और दीन को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन में रखें, प्रैक्टिस में रखें और कोशिश करें कि घर में भी और आपके पार्टनर भी दीन की तरफ राग़िब रहें, क्योंकि अल्लाह ताला से बड़ी कोई ज़ात नहीं और उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड फॉर योर प्रेजेंस। इट्स वंडरफुल टू हैव यू हियर। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल वी आर वेरी ब्लेस्ड। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दुनिया में अभी भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। इंशाल्लाह इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम।